Very good morning, friends. Welcome you all to today's seminar. Before we start the session, I request everyone to please rise for the institute motto followed by national anthem. शुभ जागे तब शुभ आशीष मांगे तब जय गाथा के विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की। थैंक यू फ्रेंड्स। Before we begin our session today, let us take a moment to remember and pay tribute to the 26 innocent lives lost in the tragic terror attack in Pahalgam on April 22, 25. Friends, their untimely departure has left a void in our hearts, and we stand in solidarity with their families during this difficult time. Request all members to stand for a 1 minute silence in honor of the victim. ओम शांति शांति शांति। साथियों, हम उन वीर सैनिकों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अद्भुत साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बिना किसी भय के कठिन परिस्थितियों में इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
इस ऑपरेशन में हमारे बहादुर जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। उनका बलिदान, उनका साहस और उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। आज की बैठक शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने वीर सैनिकों के लिए एक प्रार्थना करें, जो पाकिस्तान सीमा पर देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करे। वे सदैव स्वस्थ रहें और उनका हर बलिदान हमेशा हमारे दिलों में अमर रहे। और एक छोटा सा महामृत्युंजय का मंत्र हम सभी उन सबकी सुरक्षित कामना के लिए करें। अगर जिनको आता है वो जरूर पढ़े। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। जय हिंद। Friends, today's topic is particularly timely and thought-provoking. SME, penny, micro, opportunity or catastrophe in the making in market. It touches on sectors that are often under-analyzed but can have outside impact, either as vehicle of high growth or high risk. This makes it all the more important to approach them with insight and caution. We are honored to have with us Mr. Siddharth Rastogi, Managing Director and CEO of Ambit Assets Management, a respected voice in the financial and investment community. I call upon and request our past convener CA Kamal Dhanuka to give a brief introduction of our speaker. Please. Thank you, convener, for giving me this opportunity to formally introduce today's speaker, Mr. Siddharth Rastogi. Siddharth has a long precedent. I am only reading his most important achievement. Siddharth works for a full-time service investment bank and has over 22 years of experience in financial market. He specializes in leadership, economic, capital market, fundraising, people management, banking, and behavioral finances. Not because of his degrees, but because of his work with various organizations throughout his life. Siddharth Rastogi is the Principal Officer, Managing Director, and Chief Operating Officer with Ambit Asset Management. He is a regular contributor to Moneywise magazine, organizer Trademark magazine, and runs a weekly column, Lesson from East, on News Bharati. Siddharth is a motivational speaker and a life coach. Sir, you are everything. Siddharth is frequently invited by various B schools, including IIM Lucknow, IIM Ranchi, Indore, Rohtak, Sambalpur, FMS Delhi, JBIMS, and other leadership and behavioral finance and capital market talks and sessions. Siddharth co-founded AIFL Wealth, and before that he was the branch head of HSBC Bank, Pedder Road, Mumbai branch. He, along with his teammates, pioneered the first credit card receivable scrutinization transaction in India during his stint with UTI Bank. Also, he teaches the at World Trade Center, Mumbai, on international trade and entrepreneurial opportunities to boost India's self-reliance and forex reserves. Siddharth is also on the advisory board of various social organizations like Sarthak, National Olympics Association of India, Ramakrishna Sarada Samiti, and many more. With this few words, I request you all to please welcome me with loud round of applause.
I request Harsh ji to please give him a token of our love and appreciation. So be there. फ्रेंड्स, अभी हमें रस्तोगी जी बताएंगे कि हमारी संपत्तियां कैसे सुरक्षित रहे और कैसे बढ़े। थैंक यू। ओवर टू यू सर। स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण आप लोग सबके पास समय कितना है? जी जी कितना समय हमारे पास नहीं आप बताएं, आप स्पष्ट करें। 1 घंटा ठीक है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने मेरे परिचय के बारे में इस हिंदी कंफर्टेबल इंग्लिश कंफर्टेबल व्हाट डू यू गाइस से अभी हमने जैसा सुना कि मैं बहुत सारे लेक्चर देता हूँ, बहुत सारे ज्ञान देता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक है, सिर्फ वही जीवन के लक्ष्य है। पहला हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी 100 वर्षों में रिजर्व करेंसी बदलती है। Spanish currency used to be the reserve currency in 15th century, then the Dutch, and then the German. So significantly, हर 100 से 120 वर्षों में रिजर्व करेंसी बदलती है। ये मेरे 2 लक्ष्य हैं जीवन के, और मेरा प्रयास यही है कि हर माध्यम से इस लक्ष्य की तरफ मैं सबको प्रेरित करूं, क्योंकि मैं अकेले का लक्ष्य नहीं, मैं अकेले नहीं इसको संपूर्ण कर सकता। तो स्वास्थ्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? सुरक्षा। Is the richest man in Gaza and the richest man in Jordan safe, secure, and his well-being is taken care of? The answer is no. उस विषय पे दोबारा बाद में बात करेंगे। These are some disclaimers since I'm the principal officer in Ambit Asset Management. Hence I'm registered with this service. So I will see what I can privately system concerns and equity systems concerns, इसे कोई लेना नहीं है। एक और चीज आप इस प्रेजेंटेशन इस वार्तालाप में समझेंगे, दृष्टिकोण है और एक ह्यूमन नेचर है कि हम सब
बायसेस से ग्रसित है, जो हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाव है, the thought which is most strong in our subconscious mind, that impacts our decision making, and hence we believe that we are logical human beings. However, we are emotional beings, and there have been 300 plus cognitive biases. मस्तिष्की विकार 300 से ज्यादा मानव जीवन को हर समय जब आप निर्णय लेते हैं, ब्रिटिश राज पूरे विश्व में उनका वर्चस्व था। कहते थे कि ब्रिटिश राज का सूर्य अस्त नहीं होगा। उसी समय और बहुत से उन्होंने करीब 200 वर्षों में इतना लूट लिया था कि भारत में तो ज्यादा बचा नहीं था। तो यहाँ पे ऐसे ब्रिटिशर्स को भेजा जाता था, which was punishment posting to them। लेकिन उनके लिए आनंद, उनके लिए मजा करने की सीमित जगह थी, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जेल खाना बनाया। लेकिन थोड़ी सी चैलेंज हुआ, उन्होंने ऐसे ही एक दिन खाया, शाम को दारू पीते लेते, लेकिन वहां पर छोटी सी समस्या क्या थी, वहां पे बहुत सारे सांप आने। The problem is that there were a lot of snakes which they started to find out. Since these were town Britishers, not so intelligent Britishers, not like Machiavelli, they tried to find a solution. तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो बोला कि अभी हम लालची होते हैं, सरल से काम करते हैं, जो उनकी मुश्किल बात है, वे सांप की खाल ला करके देखा। Anyone who brings a snake skin to me, he or she will get a bounty. उसको बढ़िया स्कीम, ये स्कीम चालू हुई 2-3-4 महीने तक। सांप की संख्या धीरे धीरे घटे, कम निरीक्षण नहीं हो रहे, सांप की संख्या कम होगा कम। आईसीएस ऑफिसर को नियुक्त किया। आईसीएस ऑफिसर कौन था, लेकिन सोच उसकी ब्रिटिश इंटेलिजेंस। तो से उन्होंने 2 दिन का समय दिए, वो जाते हैं, पता करते हैं, उसके बाद आते हैं और अपने आकाओं से अपने ब्रिटिशर्स सीनियर्स को बताते हैं इस तरह की समस्या की उत्पत्ति हो गई। क्या समस्या, उन्होंने बोला आप नदी मानते हैं, बोलते मस्तिष्क से सांप को पालना शुरू कर दिया। They started breeding snakes. They started breeding snakes, and the more you give them bounty, the more snakes you get. That's a solution. Solution नहीं। Then they said you are a stupid idiot. So when they use their own money and they immediately abolish the scheme. बोला कि उससे भी इंडियंस को सबक सिखाएंगे। The snakes had no use for guardian, so guardian snakes back into the gymkhana. As a result, what is the original intention of a particular action? To reduce. What happened on the opposite side?
it increased. So this is known as the Cobra effect. इस स्टडी को जर्मनी के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया और उसने कहा कि जीवन में हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उससे हम सिर्फ फर्स्ट डिग्री ऑफ इम्पैक्ट सोचते हैं। लेकिन क्या है, उसके जो काउंटर कॉन्सिक्वेंसेस है, जो सेकंड डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। And that's how the law of unintended consequences came into effect. इसका एक सरल उदाहरण हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन मिलता है। आप सबको याद है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार, अभी तो अच्छा नेतृत्व आ गया है, कुछ समय पहले केजरीवाल सरकार थी। केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्कीम लगाई थी, वहां जो पोल्यूशन बढ़ गया था। किसी को याद है? एब्सोल्युटली। तो और इवन से उन्होंने ये प्रयास किया कि दिल्ली का जो व्हीकल पोल्यूशन है वो कम हो जाए। जिसके पास ज्यादा आपके पास इंजन वाली गाड़ी होगी, आपके पास ऑन वाली गाड़ी होगी, तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। इंटेंशन अच्छी थी, रिजल्ट क्या हुआ? जिसके पास भी, तो इसका एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंस हुआ। या तो आपके पास इवन थी या ऑड थी। अगर आपके पास इवन थी तो आप ऑड खरीदने के लिए पूरा धन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी यूटिलिटी एक गाड़ी की है। 15 साल के बाद दिल्ली क्षेत्र में, एनसीआर रीजन में गाड़ियों का चलाना वर्जित है। 15 years older cars, older vehicles, and they are sent outside NCR. So what they did, people started buying, people who have even cars, even number cars, they bought all number cars, 15 years old, got the PUC, got the system, and ensured that for some days, even if the mileage is low, they use that car. So what happened? The pollution actually increased instead of reducing. श्री कृष्ण ने महाभारत में बड़ा प्रयास किया कि युद्ध नहीं हो, लेकिन युद्ध अज्ञातवास के बाद पांडव वापस आए। तो श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, आप सबसे, आपको सर्वज्ञ है, आपको सब कुछ ज्ञान है, आप प्रयास कीजिए, आप ये अवश्य युद्ध हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो को वही होगा, लेकिन चूंकि आप प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास अनुरूप है, तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। हम श्री कृष्ण गए, भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि सिर्फ 5 गांव आपके पास, पूरा आप इंद्रप्रस्थ रख लीजिए, आप पूरा का पूरा हस्तिनापुर रख लीजिए, आप सिर्फ 5 गांव हमको इन पांडवों को दे दीजिए, जिससे कि ये युद्ध कर जाए। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने कहा, मैं आपको एक सुई बराबर नोक जितनी भी नहीं दे सकता। ऐसा दुर्योधन ने क्यों किया? So there is a concept in cognitive bias. तो हमारी जो मेंटल फ्रेमवर्क में एक बायस है, एंडाउमेंट इफेक्ट। एंडाउमेंट इफेक्ट का सरल सा अर्थ है, जो भी चीज हमारे पास होती है, उसको हम बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। मैं एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाता हूं। अगर मैं एक कॉइन हूं, उसको टॉस करूं और मैं एक शर्त रखता हूं हर्ष जी के साथ, अगर हेड्स आया तो मैं हर्ष जी को
50,000 रुपए दूंगा, अगर टेल्स आया तो हर्ष जी मुझे 25,000 रुपए देंगे. इज इट अ फेयर डील? फ्रॉम हर्ष जी पर्सपेक्टिव इट्स अ फेयर डील. विल हर्ष जी प्ले दिस gamble? 99% of the people will not play this gamble, though it is in favor of them. Why? Because we value things more what we have, ignoring the fact what is outside. हम लोग equity markets में generally, आप लोग सब चूंकि यहाँ पे ज्यादातर मेरे हिसाब से सीए होंगे, आप लोग सब राजस्थान गुजरात से predominantly होंगे, क्योंकि सीए सबसे ज्यादा वहीं से निकलते हैं. I'm assuming so you guys are much more entrepreneurial in nature. But if I look at generally, people are averse to investing in equities, right? लोग equity में invest क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि छोटे समय के लिए मेरा धन गायब हो सकता है. Amongst all four asset classes, कौन सी 4 asset classes? Real estate, debt, equity, gold. यही 4 है. इन चारों में post inflation, post tax, listen to this very carefully, post tax, post inflation, this is the only asset class which in a longer term, 8 years, 10 years, 15 years, has the ability to give पॉजिटिव रिटर्न्स. हम सबको पता है, हम अभी हमने सबसे पहले शुरू किया धन से. हम सबको धन कमाना है, लेकिन उस धन को खुद ही नष्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन और टैक्स से. So we know that equity is the only reason why the investments can grow. Despite that, उसके बावजूद हम equity में invest करने में घबराते हैं. एक और भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन करके आए थे, तो सबका मानना था ये तो दूत है. किसी भी राजा के सामने जब कोई दूत जाता है, तो राजा का दृष्टिकोण क्या होता है? ये तो सिर्फ एक दूत है, न इसके पास शस्त्र है, न इसके पास शक्ति है, न इसके पास सेना है. दुर्योधन ने भी यही गलती की. और दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण ने कहा कि आप दुर्योधन ये गलत कर रहे हैं, तो दुर्योधन कहते हैं अपने सैनिकों से कि आप भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण में प्रस्तुत होते हैं. Duryodhana had seen that after 100 errors, Shishupal was killed by a Sudarshan Chakra of Lord Shri Krishna, which means he had some extraordinary powers beyond. Despite of that, he relied on his availability heuristics. What does that mean? हम जब निर्णय लेते हैं, तो हम जो सबसे सरल, सबसे अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पर लेते हैं. इसका एक और उदाहरण रीसेंसी बायस. रीसेंसी बायस मतलब जो हमारे सामने नजदीक में जो इवेंट्स हुए हैं, उसके बेसिस पर हम अपना निर्णय आधारित करते हैं. एक उदाहरण देता हूं. एक कंपनी है जो पिछले 5-6 वर्षों से कॉन्स्टेंटली 12-13-15% की अर्निंग्स ग्रोथ दे रही है, डबल डिजिट. लेकिन मार्केट के, और वो डोमेस्टिकली ओरिएंटेड है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया. लेकिन मार्केट के हड़कंप की वजह से, एफआईआई सेलिंग की वजह से, वो कंपनी में सेलिंग आ जाती है. Now the same company which is delivering the consistent EPS, आप लोग ये बहुत समझ रहे हैं कि everybody is familiar with it, because okay, so if the earnings growth is consistent and despite of that the stock price has fallen, who will pick it up?
The answer is yes. 99% of the people will not go and venture into it. अभी आप बोल रहे हैं क्योंकि आपका स्वयं का पता नहीं लगा. सेम कंपनी आप मई 2024 में प्रसन्न थे खरीदने के लिए. सेम कंपनी जनवरी 2025 में आपको भय लगा. तो इसका अर्थ क्या है? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, रीसेंसी बायस. तीसरा, हमारे सबसे ज्यादा निर्णय किन दो चीजों पे आधारित होते हैं. सबसे पहला, जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं? अपने आसपास के परिचित लोगों से सलाह मशवरा करते हैं. जो भी उनका निर्णय होता है उसके बेसिस पे हमारा निर्णय केंद्रित होगा. जबकि जिससे हम बात कर रहे हैं इज एज इग्नोरेंट एज यू. वरना हम उसके अलावा अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जिनसे भी करते हैं, they have absolutely no relatedness, no clue about that particular subject. 90% of the time, people who invest into the stock markets, they do not even know what the company does. Everybody is working hard to earn money, and think about it. When you are investing the money, the decision is the shortest. The time frame between your thought and the decision making is shortest. However, to earn the same money, you spend sometimes months, sometimes years. And where do you spend more time? After you have invested, after the stock price has gone down, then you start looking into it, thinking that after you and then again, you are researching on the company or on the fundamentals or on the numbers. आप क्या करते हैं? जिसने आपको गाइड किया था उसको फोन करते हैं. उस सामने वाले को फोन करता है, वो उसके सामने वाले को. So this is known as the false consensus bias. आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं. सबको यूएस पसंद है. सबको लगता है कि यूएस is the God's gift to mankind. Everybody knows that. Everybody believes कि यूएस stock markets are fantastic. हम कितनी बार जब अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में किसको लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरी खोखली है, ये वो सब कुछ है, ये नेगेटिव पर बेस है. किसको लग रहा था? आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ पे कोई हाथ नहीं खड़ा करेंगे, वरना बट we wanted to participate into the Bharat's अर्थव्यवस्था at that point in time. एक चीज आप फंडामेंटली समझ लीजिए, भारत always has been and will be in a unique position. One is consumption. I will come to that. There are three Ds which will never get reversed. तो कभी भी आपको संशय हो, आप इन इस थॉट पे ध्यान दीजिए. Between 18th century till about today, US has faced 51 recessions. कितने? 51 recessions. Some lasting for 6 months, some lasting for 6 years, some lasting for 26 years. उसके बावजूद we trust US. कितना रिसेशन हुआ है? सिर्फ एक वही शॉर्ट टर्म के जब कोविड होता था. आप सबको 2008 याद है किसी को बाय चांस? लीमन क्राइसिस, बेयर स्टर्न्स क्राइसिस. यूएस की अर्थव्यवस्था GDP went down by 8 to 9%. First was the number for Bharat GDP in 2008. Anyone remember? Anyone remembers? Positive 4.6%. Because Bharat is a recession-proof
इकोनॉमी वाई। मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हर साल एक आउटसाइड, आप लोग तो मुंबई के निवासी हैं, एक मुंबई के बाहर जाकर के किसी मंदिर या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं? कितने लोग? हाउ मेनी? सब लोग? Always, irrespective whether there is recession, whether there is, say 80% of the travel, 80% of the travel happens because of leisure. In 90% of the travel happens because of 90%. और इसी कारणवश हम सभी को बाहर जाएंगे, चाहे आप वित्तीय दृष्टिकोण से सामान्य व्यक्ति हैं या आप वित्तीय दृष्टिकोण से समृद्ध व्यक्ति है। आप जब कहीं पर भी जाएंगे तो आप वहां पे खर्चा करेंगे, और जब आप खर्चा करेंगे तो उसकी सारी की सारी जो मूवमेंट है वो किसको बेनिफिट होगी? सपोज महाकुंभ में याद है 45 दिन में इंडिगो ने 5,50,000 passengers used Indigo services from 27 destinations to Prayagraj with an average ticket of closer to 12,000, going up to as high as 35,000-38,000 a day. How many people travel to Mahakumbh? 66.12 crore. Multiply that with 6 kinds of meals, with one shoe, pairs of additional clothing, is the incremental spending you are doing. पूरे महाकुंभ के अरेंजमेंट में लगभग $1 बिलियन लगा था, 8 से 9,000 करोड़। केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को because travel airlines are दूसरी जगह से आ रहे हैं, additional 50 to 60,000 crores of revenue came to Bharat. So the point I'm trying to make is Bharat just process and systems which will never allow it to have recession. कितने त्योहार होते हैं? त्योहार महीने क्यों होते हैं? दो कारण है। Human beings are social animal. आपके पास में धन दे दूं, आपको एक से पिंजरे में बात कर दूं जो सोने का है, और आप किसी से बात नहीं करें, in few years, in few months, in few weeks, depending on your capacity, depending on your atma, you will be dead. Hence, अगर हमारे ecosystem, हमारे close ones, they may or may not be very happy with us, we may or may not be very happy with them. If there is social collaboration, social collusion, automatically the mental peace, the mental well-being and overall well-being enhances. Second, ये तो सब अच्छी बात है. From a financial perspective, whenever there is an event, you spend money. Whenever there is a festival, you spend money, depending on your budget, depending on your capability. So you are being induced to spend money. Somebody else is money, and it is the economy. You spend in the festivals मनाए जाते हैं, Good Friday, Christmas. See these two, right? So think through it. Think through it. As an economy, that's why never get interrupted. And this is not DNA. You can take us out of Bharat, but how will you take Bharat out of us? आपके विषय पर भी आएंगे माइक्रोस एसएमई, जो पता है आपको बहुत ज्यादा एकदम उससे वेट कर रहे हैं,
last 10 years, can someone tell me what was the first reform of the present government which was undertaken in 2014? आप लोग तो सब वित्तीय महारत आप सबकी है। सब सोचते हैं बाकी सब कुछ है, लेकिन सर आपका नाम क्या है? प्रदीप जी ने बड़ा सरल सा चीज बोला, जनधन बैंक अकाउंट 2014 में जो एवरेज तो उस वक्त ऐसा होता था कि people is scared to enter into the bank. मैंने पैसा अपना डाला था, मेरे को अपना पैसा निकालने में दिक्कत हो रही। Today there are over 85 crore जनधन अकाउंट। ये तो सब समझ में आ गया, जनधन अकाउंट खुले उसमें पैसा भी आ गया, लेकिन उससे हुआ क्या? आप लोग सब इकोनॉमिक्स फाइनेंस ये सब बेसिक समझते हैं। आप लोग को कितने लोग व्यापार करते हैं? who are not professionals, who are not employed, people who are doing business. अच्छा आप लोग सब employed हैं, अच्छा प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग है, अच्छा ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा। सर मुझे एक जो एक बिजनेस में दो ऐसी कॉस्ट जो सबसे ज्यादा आप लोग खराब देती है, which is totally prohibited. और सोचिए आप फिक्स कॉस्ट कितना करेंगे? आप यू कैन इनकर द फिक्स कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रोडक्शन यू वांट, राइट? यू कैन हायर पीपल एज मेनी एज यू वांट द सर्विसेज फ्रॉम। बिजनेस में सबसे ज्यादा कौन सी दो कॉस्ट, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट आर द टू कॉस्ट कैन यू थिंक ऑफ? सोचिए जो सबसे ज्यादा खराब है, जिस पे आपका नियंत्रण भी नहीं है। परफेक्ट किसने बोला? बहुत। तो ये सोचिए, आपका नाम सर? कपिल जी ने बड़ा सरल सी चीज बोली, ब्याज। कपिल जी गए थे, एक नया उनको इनिशिएटिव करना था, वहां से बैंक के पास गए, बैंक ने बोला कि 10% का कॉस्ट है। कपिल जी ने बोला बहुत अच्छा है, मेरा मार्जिन 12% का, 13% का है, 3% का मार्जिन है, मैं 3-4 साल में सारा पैसा चुका दूंगा, प्रॉफिट बहुत बढ़िया, 20% अपना लगाऊंगा, 80% बैंक का, काम खत्म, बिजनेस तैयार। 6 महीने के बाद बैंक की प्रेम पत्र भेजा है कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट 12.5% हो गई है। बिजनेस में भी प्रॉब्लम हुई, मार्जिन गिर करके 11.5 हो गए। कंपनी की नहीं है, तो किसके पास जाओ? बैंक के पास। हो गए हैं, आपने ऐसा क्यों किया? उसने वो बोलते नहीं, मेरे पास बताओ, आप यही आरबीआई के पास, कपिल जी गवर्नमेंट करके जाते हैं आरबीआई के पास, आगे गवर्नमेंट से पूछते सर आपने ऐसा क्यों किया? वो बोलते देखिए वी आर स्टिल अ फिस्कल डेफिसिट कंट्री, मतलब हमारे अंदर अभी भी फिस्कल डेफिसिट में हमारा फिस्कल सरप्लस कंट्री। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट है तो हमको बोरो करना पड़ेगा, हम रेगुलरली काम कर देंगे तो हमारे को जो डेफिसिट है वो बहुत चाहिए। तो हम बोलते हैं इसका कुछ प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से नहीं है, तो फेडरल रिजर्व के पास, वो फेडरल रिजर्व के पास जाते, फेडरल रिजर्व तो बोलते हैं आपकी वजह से मेरे कपिल जी बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, फेडरल रिजर्व बोलते मेरी कोई गलती नहीं, आप मेरी इन्फ्लेशन बढ़ गया, मैंने क्या किया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, मुझे इन्फ्लेशन कम करना था, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। In the process, what has happened? Folks like Kapil ji who have based their decision have gone back. So, what is one very critical thing in business is your cost of capital. Everybody understand that? आप एक स्लाइड दे रहे हैं, बड़े अच्छे नंबर हैं कि नेशनल हाईवे पिछले 10 सालों में 10 से 11 सालों में 3 गुना हो गए। क्यों? पहले क्यों नहीं हो? Forget the bill of the government. I don't get into the politics of it. क्यों नहीं हुआ? किसी भी sorry. Okay. So
याद रखिए जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस, मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपने वो चीज देखी हुई पिछले 8-9 बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी नीची. Everything is being borrowed by NHAI and executed by NHAI, not the government money, but solely resources. सोचिए कि का cost of capital कम हो गया, then your ability to do business and successful businesses always going to be. एक समय और सरल सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको. तो 2019 याद है, प्री कोविड भारत में लोन रेट क्या थे, इसमें याद है 7.5 to 8%. आज कितना लोन रेट है, सॉरी 8.5%. कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ परसेंटेज टर्म्स में 15% मैक्सिमम. ठीक है, यूएस में 2019 में interest rates 4.5%. Today what is the hold rate in US? 7%. Absolutely 350% jump. Why is that? Almost negligible. दूसरा मुझे एक चीज बताइए, और this is related to exactly this. दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट बोलिए ना, दूसरा क्या है? तो आप लोग समझ गए भारत में जैसे ही बिजनेस करने की जो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल करने के हमको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, क्या? कैपिटल और ह्यूमन विल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल. These are only two things which you need, right? Rest everything can be bought, purchased, borrowed, hired, everything. These are the only two things. एक हमने कम कर दिया. दूसरा मुझे कॉस्ट बताइए मैन्युफैक्चरिंग में, तो सबसे ज्यादा people hate. सोचिए इन्वेंटरी तो जितनी आपकी इच्छा है ये सब कंट्रोल होगा. रिसर्च टैक्सेशन तो लेना होगा, वरना आपको आपके घर में घुस करके मारेंगे. आप अगर वो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, तो हमारा सिस्टम को, सो टैक्सेस नेवर से, रिमेंबर टैक्सेस जो मैंने आपको बोला, हमेशा दिमाग में ये था लीजिए. समृद्धि, समृद्धि से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण सुरक्षा. जब भी दिमाग में कंफ्यूजन हो ये चीज दोहरा लीजिए. Coming back to the conversation, logistics. Logistics is a cost which is profitable. मैंने प्रोड्यूस करके तो कर दिया, अब मुझे नहीं करना पड़ता. Interestingly, till about 2014, the logistic cost for the country was closer to 10%, 9.8, 9.9. US logistics cost as a percentage of GDP was 8%. Average, world average was 9. Today, Bharat is at 8%. भारत की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है कम हो गई, और इस सबका बेनिफिट क्या है आप ये देख रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग सा, भारत में टुडे भारत is the second largest food network in the world, much larger than China. It is only next to United States of America. United States ने ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ये क्रिएट किया था 19th century में. And there was a point in time, where United States used to say, did highways make United States, or United States made highways, or highways made United States of America? के लिए वही सिचुएशन आ रही है. अगले 5 वर्षों में भारत का जो रोड नेटवर्क है, इट विल बी द लार्जेस्ट. हमने NH नेशनल हाईवेज, 4 लेन हाईवेज, दे हैव मल्टीप्लाइड. जितना आपका 4 लेन हाईवेज 2014 तक था, उससे 3 गुना, लगभग 3 गुना अगले 10 सालों में.
लेकिन इस सबका फायदा क्या होगा? So this is one is obviously logistics cost which has come down, but think through it. आप लोग सब फास्ट टैग यूज करते हैं, आप लोग सब हाईवे पे जाते हैं, फास्ट टैग यूज करते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं, सफेद बाल वाले, तुम सबको याद है, युवा यहाँ पे थोड़े कम है तो अच्छा है, बट उनको तो पता ही नहीं है कि जब हमको टोल पर 5 से 7 मिनट वेट करके टोल की पर्ची कटानी पड़ती, आज से 10 से 15 साल पहले। Interestingly, till about 2014 on an average, the toll wait time was 12.5 minutes. Average time. It has been reduced to 47 seconds. Government is proposing by end of 2025-26 financial year, FY26. This will get down to 25 seconds. And NHAI is saying that if you have to wait for more than 25 seconds, you don't have to pay the fine. उससे फायदा क्या हुआ? आपका जो फ्यूल कोई भी एसी ऑफ कर देता है, कोई भी गाड़ी ऑफ करता है, no one does. Which means you are burning fuel and how much it has saved? 80,000 crores. Toll tax has jumped over 10 times in last 10 years. Similarly, जो मैंने एक और चीज जो आपसे बोला था, आप लोग सबको याद है एक समय था जब हम लोग पीएसयू को क्या बोलते थे कि वीआरएस, राइट? पीएसयू वर द मोस्ट इनएफिशिएंट, मतलब युवा लोगों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन प्योरली जिन्हें है कि ये सरकारी है, एक वर्ड यूज होता था, सरकारी है, हर चीज सरकारी है। And understand the difference. 2017, not very far away, the total PSU bank loss was 85,000 crores. 85,000 crores. उसी समय पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 41,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। आज से 7-8 वर्ष पश्चात private banks have grown to 148 lakh, 1.48 lakh crore profit. PSU from 85,000 crores, from 85,000 crores has moved to 40,000 crores. And क्या उन्होंने सारे के सारे PSU बैंकर्स को चेंज कर दिया? क्या किसी PSU बैंकर्स को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई? नहीं. This is the difference of culture. सरल सा है, जो ऊपर होगा वही नीचे और करेगा। हम लोग सब जुलाई अगस्त 2024 तक बड़े उत्साहित थे भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए, थे नहीं थे? लगता है कि सारा घर वर बेच करके भी सब कुछ स्टॉक में फोमो फीलिंग है। तुम्हारा तो 38% का पोर्टफोलियो हो गया, मेरा तो यार 15 ही है। ऐसा फोमो फीलिंग था सबको। एवरीबॉडी वाज कंपेयरिंग कि इसका इतना ज्यादा और मेरा कुछ भी नहीं। However, in the interim, what was happening is very interesting. तो हम हर जगह भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में क्यों? And this is what was happening since 2014. 2014 में जो FIIs, foreign institutional investors की ओनरशिप भारतीय स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड स्टॉक मार्केट में किसी को अंदेशा है कितनी थी? It was over 32%. It has come down now to 18.5%. अभी रिसेंट टाइम्स में थोड़ी सी बढ़ी है, but there is a reason behind it.
शिक्षक होना, तो शिक्षक वाली प्रवृत्ति बाहर आ जाती है। क्षमा कीजिएगा। So what I was talking about is very simple, is stock markets which were largely owned, dominated by FIIs has significantly reduced. Indian ownership उस वक्त कितनी थी? 2014 में it was barely 2.5% domestic और म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन मिलाकर के 3-5%. In essence, 5% and 22%, which means whenever FIIs will sell, whenever they will sell, depending on their whims and fancies, depending on their interest rate, depending on their outlook, who will support? FIIs ने लगभग $14.5 बिलियन का माल बेचा। कितना? 2022 याद है? 2022 यूक्रेन रशियन वॉर स्टार्ट हुआ में 2022 में FIIs ने भारत में $14.5 बिलियन का माल बेचा। What does this mean? Let's put it in context. 2008 में याद है? FIIs ने कितना बेचा था? $24 बिलियन। निफ्टी कितना टूटा था? सेंसेक्स कितना टूटा था? 42%, 42%. First Jan to 31st December कितना टूटा था? 52%. In 2020, how much is it? $14.5 billion. How much the market corrected? Nifty was up 4.5%. This is the power of Atmanirbharta. So what has happened? So over the years, जो था 1 लाख करोड़, अगले 20 वर्षों में 2020 तक कितना हो गया? 30 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़। अगले 5 वर्षों में 67 लाख करोड़, from 30 lakh crore to 67 lakh crore। म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल और मिड कैप, उसका 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ से 5 सालों में ईयू बढ़ गया 6.5-7 लाख। रिटर्न्स की बात करें, between Nifty from January 2021 till about December 24, अगर आपने 1 करोड़ रुपए निफ्टी में डाला होता, आपको 4 वर्षों में लगभग 21, 22, 23, 24 4 वर्षों में 1.76 मिलते। मिड कैप में 1 करोड़ में 2.68 मिलते, स्मॉल कैप में 2.86। So you got disproportionate returns in mid and small cap. Even the number of something systematic investment plan, mark to market के 5 वर्षों में 4 गुना बढ़ गए। अगर देवी जी ने यहाँ पे 1,000 रुपए का सेट किया और इन भाई साहब ने 5,000 का सेट किया, तो दिस विल बी 2 steps counted. No steps in 5 years, multiplied to 3 years. These amounts multiplied in 5 years to 3 years. And today, as we speak, the ownership in the Indian stock markets is closer to 17.5%, and equivalent 18.5% is FIIs. So we are neck to neck. In next 4 to 5 years, what we will see that Bharat will dominate the stock markets and FIIs will reduce. Now let's look at the possibility. Did FIIs sell too much? So FIIs ने का जो ownership थी भारत में 2021 में वो थी लगभग 77 लाख करोड़, 77 lakh crores. Now it has been reduced to 66 lakh crores. So 11 लाख करोड़ का माल बेचा है पिछले 4-5 सालों में. But because Indians lost money, hence the ownership has skewed in favor of, and this is an irreversible phenomenon. तो कितनी बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, लेकिन ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं,
लेकिन there is a conundrum. What is the conundrum? अभी हमने बात की म्यूचुअल फंड अच्छा है, स्टॉक यहाँ पे बहुत सारे पैसे बनेंगे, इतना सारा धन बनेगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि भारत में लिस्टेड कंपनियां कितनी है, किसी को बेचा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 6,500। आप लोग सब एकदम सही है, 6,500 लिस्टेड कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें एसएमई और पेनी निकाल देता हूं। लेकिन अगर मैं एनएससी की बात करूं तो करीब 4,400 4,468 कंपनियां। There may be overlap of 2 to 3%. That's about it. लेकिन ये पैसा कहां जाता है? हमने इतनी सारे बड़े बड़े नंबर्स बात किए, लेकिन ये पैसा कहां जाता है? इतना सारा पैसा आया है सिर्फ हर महीने 23,000 से 26,000 करोड़ तक के बीच में हर महीने में आया है। इसका बिलियन डॉलर में करें तो लगभग 3 बिलियन डॉलर, मतलब 36 बिलियन डॉलर मनी आपको बोल दिया हुआ है। दिस इज ब्लाइंड मनी, व्हिच मींस money gets picked up from the bank account and gets invested in the market. You are not even aware of it. $36 billion rough and ready every year and increasing. And this is taking money because people are not stocking themselves or and their mutuals being added. So the point I'm trying to make here is, where is this money going? I don't know. एकदम चतुर है सारे अपना आप कपिल जी एकदम स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ हैं। 6,500 कंपनियों में से सिर्फ 500 कंपनियों में ही है पैसा। क्यों? क्योंकि सभी का गाइडलाइन है। लार्ज कैप मतलब टॉप 100, मिड कैप मतलब नेक्स्ट 150, स्मॉल कैप का अर्थ है 250 टिल अबाउट 556। अब म्यूचुअल फंड के साथ एक और चैलेंज है, पैसा इतना सारा है, अगर उन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया तो वहां पीछे जाएंगे तो खुद ही कैसे ऑफर करेंगे, वहां लेने जाएंगे तो खुद ही ऑफर करेंगे। Sell cheap. So that's the problem. Does that mean that anything beyond 500 is bad? मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा धन कहां बनता है? सबसे ज्यादा वहां बनता है जहां पे 3 चीजें। This is a qualitative question, so there are 3 things which, one, where the company's health is phenomenal. ठीक है, फंडामेंटल जिसकी कंपनी की हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स अल्टीमेटली फंडामेंटल्स है और भी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 2, companies that are not known to general public at large, right? Number 3, जहां पे इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप रिलेटिवली कम है। अब आप किसी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप में अगर आप किसी कंपनी में अगर 15-20 इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या करेंगे उसके लिए? उस इंस्टीट्यूशन वो सारी उस कंपनी के कॉन्स्टेंटली ट्रैक करेंगे। If you keep tracking that number every single, उसे एक न्यूज़ आया they will put it. Instantly what will happen? You will not going to make money out of it because you, आप तो अपने प्रोफेशन में लिप्त हैं, right? You cannot track, so who's going to make money? The money is going to be made by the institution. It's not interested in talking to you because you make a very insignificant minority. They are also minority shareholders, but they make a majority significant minority. Are you going to tell me on this? We are playing by their norms, their game. अब इसमें 2 और चीजें मैं क्विकली समझा देता हूं। एसएमई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंफॉर्मेशन, the credibility of information and the ability to do right things and scale up. उसमें हम थोड़े समय में बात करेंगे। और एक पहली में चैलेंज क्या है? कंपनीज which are mostly struggling or where there is a potential turnaround, there only you get the opportunity in time. So where is the biggest opportunity lie? The biggest opportunity lies in micro cap. But what do you mean by micro cap?
अगर आप 6,500 कमीने 6,000 से 6,600 भी कंपनी का ढूंढते हैं, is it simple? The answer is no. It's very, very tough. So what do? You start finding gems and jewels where institutions have closed their sight. You expand your vision and start looking for things which are just below 500. So pick up businesses which are from 500 first to 1,500 companies. And if you look at historically, over a period of 20 years, Nifty has given, अगर आपने 1 करोड़ डाला होगा तो उसका 11 करोड़ होगा 20 साल में। इंडिया इंडेक्स में आपका 12 होगा 15 करोड़ होगा, स्मॉल में, माइक्रो में आपका 20 करोड़। So this you are constantly, and this is just the index, but can you improvise on it? The answer is yes. So what can you do? It's a simple sum. So there are 5-6 matrix. So first is you pick up businesses which are from 500 first in market cap till 15. Are you guys there with me on this? Simple market cap की ranking. सबसे दूसरा काम क्या? हमने भी क्या बात की? Leverage, interest rate, right? अगर कपिल जी ने ज्यादा डेट किया होगा तो वो खराब हो जाएगा, right? Because of the UPI, because of the reduction in the working capital, because of the instant payment mechanism, the working capital cycle has been reduced. Everybody agrees on that? किसी को याद है हाई वैल्यू चेक क्या होता है? ये कब हो रहा था? तो 10 साल पहले जो कुछ मैनेजर होता था किसी भी बैंक का, उसको दिवाली और होली में सबसे ज्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि because of that position, it is able to get the clearance done on the high value check. हमारा एक दिन का ब्याज बच गया। तो जो गिफ्ट है उसके प्रोपोर्शन इज वेरी वेरी स्मॉल। Today, the entire system is which there is no efficiency in the capital. मुझे पेमेंट करने चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो, I can do that instantly. So the cycles are something. Is there an actual requirement of working capital? अगर मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज है तो मैं what can I do? I can give a cash discount on percentage money quickly, right? Is there a real requirement? Is there a real requirement of Is there a real requirement of working capital? The answer is absolutely no. So अगर किसी के आप डेट भी लेंगे तो किस तरीके का डेट लेंगे? डेट लेंगे तो केपेक्स के जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप केपेक्स के जब डेट लेंगे तो उस डेट को केपेक्स आप 18 महीने में खत्म हो जाएगा, 24 महीने में खत्म हो जाएगा, दैट कैश फ्लो शुड स्टार्ट कमिंग इन एंड यू शुड स्टार्ट रीपेइंग द डेट. If after 3 or 4 years the debt is constantly increasing, it means there is a fundamental challenge. So first thing, second, ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें प्रमोटर स्किल इज इन द गेम. 60 से 65%. एक उदाहरण लेते हैं कि अगर प्रमोटर ने अपने पुत्र को बिजनेस में लाया और उसको वो 5 लाख की पर एनम सैलरी देता है वर्सेस 5 करोड़ की सैलरी देता है, तो क्या होगा? पिता का मन है, पिता तो पुत्र को ज्यादा सैलरी देना चाहेगा, लेकिन वो अगर 5 करोड़ की सैलरी में पुत्र को दे रहा है तो क्या होगा? आपका जो पैक है वो कम से कम नहीं हो 3.5 करोड़ रुपए से कम हो गए, 3.5 करोड़ रुपए से कम हो गया, उसका 3 मल्टीपल 20 टाइम नहीं होगा, कितना हो गया? 3.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20, 70 करोड़. 70 करोड़ में उसकी ओनरशिप कितनी है? 65% या 70%. हाउ मच इज द डेट ही इज
closing, he is closing closer to 40-45 odd crores. Keeping in mind कि मतलब उसका वो 5 लाख रुपए ले रहा है और यहाँ पे 5 करोड़ दे रहा है, उसको बेनिफिट कितने का है? सिर्फ 3.5 करोड़ का है। उसके कितने का है? Are you guys getting the numbers out? Hence, the second criteria which you should look for is businesses which have meaningful promoter rating. Number 3, companies which have defensible moats. ये माइक्रो कैप है, तो ये तो सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, ये तो 501 से हैं, लेकिन क्या ये B2B सेगमेंट में मीनिंगफुल हो सकती है? यहाँ पे बिस्किट कौन खाता है? सब लोग खाते हैं। अगर आपको सोचिए, मैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने बिस्किट प्रोक्योर किए, वो बिना पैकेजिंग के थे, तो आप लोग खाएंगे बिस्किट को? शायद नहीं खाएंगे। आप लोग बोलेंगे यार हाइजीन का प्रॉब्लम है। क्या सेम पैकेजिंग कंपनी ब्रिटानिया को, पार्ले जी को और सर्विस को पैकेज कर सकती है? If you start manufacturing biscuit, you have to spend a lot of money on the branding, distribution, point of sales. Yet you may not be able to compete with your competition. Hence, can you become a company without goods product? The company cannot compete with your company. You have to be because you are a packaging company. Are you guys getting me? So you can be a monopoly, you can be a duopoly, you can be a monopolistic trade, or you go to monopolistic trade. Yet cannot be yet relatively small in size. तो ये सारी कंपनियां जब बढ़ेंगी तो automatically So this is the second thing which you should. तीसरा एक सरल सा चीज which you should keep in mind is businesses which have good and ethical business practices. People who do not book their books of accounts, you understand, right? Now, how do people do their books of accounts? Fictitious sales. But आप लोग एक चीज सोचेंगे कि आप लोग fictitious sales किसी को पता है क्यों डंप करते हैं? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, right? मोस्टली यहाँ पे. Why do people show fictitious sales? बैंक पेमेंट एक, अगर कि मेरे पास डेट ही नहीं है तो मैं fictitious sales को दिखाऊंगा. परफॉर्मेंस से क्या होगा? मान लीजिए अगर इवेंचुअली तो मुझे पता चल जाएगा. It's a combination of. लेकिन अगर मैंने fictitious sales दिखाई तो मुझे टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, और टैक्स तो एक्चुअल टैक्स आउटफ्लो है ना, तो ये क्यों? लेकिन मैंने टैक्स तो उसमें मैं ब्लैक को अंदर कैसे डालूंगा? ठीक है, we will not get into the details, but generally beyond this, why do people do? So there is a very simple logic to it. It's all the game of P and W. जितना मैं टैक्स भर रहा हूं उससे कम से कम 20-30 गुना मेरा जो टैक्स का इम्पैक्ट के बाद मेरा जो रेसिडुअल इंक्रीमेंटल पैक आ रहा है, उसका P मल्टीपल अगर मैं 20 से 25 भी लेता हूं और मेरा मार्केट कैप जो बढ़ रहा है उसके बाद जो मैं प्लेसमेंट कर सकता हूं, इट विल बी सिग्निफिकेंट. So this is one reason why people generally put their books of accounts. So ये सब करने के बाद you can pick up the micro cap companies. एक और इंटरेस्टिंग चीज देख रहा है कि जितनी भी हम लोग एक चीज और मानते हैं कि ये कितने लोगों ने सुना है हाई रिस्क हाई रिटर्न? Everybody understands this? High risk high return. But is there real high risk high return? It's a fallacy. हमने शुरू में कॉग्निटिव बायसेस की बात की थी. This is another fallacy. Think of a company which is delivering consistently 15% earnings growth. किसी भी इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के रिस्क होते हैं, सिस्टमिक रिस्क, एसिस्टमिक रिस्क. मार्केट रिस्क एंड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क. मार्केट रिस्क इज ओपन टू एवरीवन. अगर मैं माइक्रो कैप देखूं तो माइक्रो कैप, if you have invested over long periods of time, which means 5 years, 10 years, your beta, everybody understands, beta is actually less than 1. Why?
The reason is इसमें institutional ownership is barely 2%. In BSE 500, the institutional ownership is as high as 41%. So, if you understand, large part is with the. So, if you have conviction and if you have understanding of the business and if you know where the capex which you have done is going to yield the numbers, the returns will be significantly higher. एक और इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है कि जैसे जैसे ये कंपनियां बड़ी होती हैं, today it is a 700 company. As a company will keep becoming bigger and bigger and bigger, it will come into the BSE 500. आप जब तक BSE 500 के नीचे होते हैं, तब तक आपका सिर्फ EPS expansion में पैसा होता है. You understand? There can be only two ways of making money in the market: EPS and PE. You understand, right? तो अगर EPS बढ़ रहा है और आपका पैसा बढ़ रहा है, that's fine. But BSE 500 में इंक्लूड होने के बाद, when it comes under the radar of the mutual funds, we spoke about it. Then the expansion can also significantly. एक और सी चीज है कि roughly around half the IPOs which are coming, half the IPOs in last 5 years, 10 years which have come, they are below BSE 500. तो नई कंपनियों की जो अपॉर्चुनिटी है, somebody said that IPOs is one of the places where people invest. But if you are investing in a company which is fully valued and which is already a large cap, is there a real opportunity to make money? यहाँ पे your opportunity to identify these businesses is far higher. What we have seen is ultimately earnings, and these are the companies which cater to the That's it broadly from my side. This is a book which I have written just to talk about the 100x formula. This book talks about how you make in 20 years 100x. This book talks about the fundamentals of investing, 4 pillars to which you never usually when you sell your stocks, when you sell your investments. Because everybody talks about buying, but when you put profits, when do you make sure that you make others a profit? This book talks about it. So that's all from my end. Happy to take any questions. Finally, this is the slok which I would want to end with. Is Mitrani Dhamdhamyani Prajanam Samapanyam Janani Dhanam Bhuvishchara Swargadhavi Garyasi. This is the thing which Bhagavan Sri Ram actually was taught or told by Rishi Rashid. They said that beyond Dhan, beyond wealth, beyond Praja, beyond everything is Mata and Matru. So always remember that what we started with is Suraksha and Matrubhumi and Mata. They are Sarvopari. Rest everything can be functional, but not this. Thank you. Thank you, Rastogi. Friends, Mr. Siddharth Rastogi has given how to earn money with Samriddhi, Dhan and Suraksha. I request our Deputy Convener, Lalit Bansal, to give a founding. Thank you, Mr. Kannan, and thank you, Mr. Siddharth Rastogi, and in physics session with Fusion Networks. We have
थैंक यू ललित जी। साथियों, आज हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं, डॉक्टर राम बिहारी पुजारी जी, जो सालासर मंदिर में महत्वपूर्ण पुजारी होने के साथ साथ अमेरिका की प्रतिष्ठित कैनेडी यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त विद्वान भी है। सर, आपका जीवन साधना और शिक्षा का अद्भुत संगम है। एक ओर आप धार्मिक सेवा में समर्पित हैं, वहीं दूसरी ओर आपने उच्च शिक्षा में भी अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हम हमारी स्टडी सर्किल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करते हैं। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरित है। मैं श्री महेंद्र जी बागेरिया, कमल जी धनुका, मनीष जी गाड़िया से अनुरोध करता हूँ वहां आए और उनको हमारी स्मृति के रूप में एक दुपट्टा ओढ़ाए। आशीर्वादी वचन से देख